Hello friends, this is Jyoti Rathi Bagri again from Rathi Tutorials. Today I am here to start one of the topics of Business Studies Class 12th CBSE board that we are going to deal today with. I'm not sure if the chapters are similar in ICSE board as well, but I am taking the topics specifically from the CBSE board. So let's begin. The topic that we would deal with today is Principles of Management. I believe that the second chapter of the part 2 of your BST course. Um, so basically, this chapter has been divided into three bits. The first bit being meaning, nature, and significance of principles of management. The second bit, Taylor's principles and techniques of management, scientific management. And the third bit, Fayol's principles of management. So today, right now, in this particular presentation, we are just going to take up the first bit, that is meaning, nature, and significance of principles of management. We would then move into Taylor's principles and techniques, and finally, with Fayol's principles of management, we would close it. So let's begin. Yeah. So, principles of management. So, what three things that we would learn today is concept, nature, and significance of principles of management. So, as usual, we would be using both English and Hindi for clearer understanding of the topics. And one thing that I would like to mention straight away is I have picked up all the information that I have put on my slides from the NCRT textbooks only. So once you go through this presentation and go back to your textbooks, it would make very easy the read when you take the first read of the book after going through this presentation. The read would be very easy and you would be strictly able to relate to what you have understood in the presentation, and then it would be very easy for you to memorize things, right? Let's begin. तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका कॉन्सेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस. चलिए, अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले लेट्स टेक वन स्टेप बैक, गो टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट, आई बिलीव हम सब ने मैनेजमेंट की काफ़ी सारी डेफिनेशंस पढ़ ली हैं. इफ़ वी हैव रेड द चैप्टर व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट रिलेटेड थिंग्स. So when I read management for the first time, the first definition that I read was, let me take up the pen. Yeah, so the first definition that I read was management means manage men and T for tactfully. ठीक है, सो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मैनेजमेंट मीन्स मैनेज मेन टैक्टफुली. तो अब जी हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, हमें वापस से मैनेजमेंट में जाने की क्या ज़रूरत है भाई? हमें सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जानने के लिए एक बार ये छोटा रिकैप लेना बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट होता क्या है. मैनेजमेंट इन द ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इज मैनेजमेंट टैक्टफुली. दिस इज़ वन डेफिनेशन जो मैं आज तक नहीं भूली, और ये एक ऐसा डेफिनेशन है जो अपने डेफिनेशन के थ्रू मैनेजमेंट को क्लियरली डिफाइन कर देता है कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट करता क्या है. मैनेज मेन टैक्टफुली. यहाँ पे मेन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ द जेंडर मेल. मेन का मतलब पीपल वर्किंग एट लार्ज. इट कैन बी मेन, इट कैन बी वुमेन. फाइन. तो हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है या मैनेजमेंट का काम क्या है? लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको टैक्टफुली मैनेज करना. टैक्टफुली मतलब तरीके से. अब मैनेजमेंट टैक्टफुली हम समझ गए, हमें पता चल गया कि मैनेजमेंट क्या है. अब हमें ये जानना है कि कैसे करेंगे मैनेजमेंट टैक्टफुली. हाउ डू वी एक्चुअली मैनेजमेंट टैक्टफुली? अभी इसके लिए
क्या हुआ है, सदियों से मैनेजमेंट चला आ रहा है, आज की बात नहीं है. मैनेजमेंट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस फ्रॉम एजेस. जब जब जो हम कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, वहाँ से मैनेजमेंट एग्जिस्टेंट था. वो अलग बात है कि वो उतना डेवलप्ड नहीं था उस फॉर्म में. जब हम अपने पुराने कल्चर या हिस्ट्री में जाते हैं तो भी हम ये देखते हैं कि जब राजा महाराजाओं का राज था तो भी मैनेजमेंट की ज़रूरत थी और तब भी मैनेजमेंट से ही काम होता था. और आज के ज़माने में जब हम देखते हैं तो भी मैनेजमेंट की उतनी ही ज़रूरत है. सो नाउ हाउ टू मैनेज थिंग्स थ्रू मैनेजमेंट, या हाउ टू मैनेज मेन थ्रू मैनेजमेंट, उसके लिए क्या किया गया है, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं सो दैट वी कैन ईजिली मैनेज मेन टैक्टफुली. अब हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्स क्या हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स. अब प्रिंसिपल वर्ड, द वर्ड प्रिंसिपल, इसको अगर हम साफ सुथरी सीधी इंग्लिश या हिंदी भाषा में जानने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, द प्रिंसिपल इज जनरली व्हाट, अ गाइडलाइन फॉर डूइंग समथिंग. जनरली हम प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, जैसे जैसे हम अगर हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लें, व्हेन वी से दैट अ लाइफ ऑफ अ मैन शुड बी ड्रिवन बाय प्रिंसिपल्स, यानी कि उसके जीवन में कुछ सिद्धांत होने चाहिए, कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए, उसी के आधार पर उसको अपना जीवन जीना चाहिए, उसी के आधार पर उसको अपने लाइफ में डिसीजंस लेने चाहिए, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उसको अपना बिहेवियर रखना चाहिए. Exactly the same rule applies to principles of management also. So what do we see here? A managerial principle is a broad and general guideline for decision making and behavior. यानी decision making skill के लिए या प्रॉपर बिहेवियर की कैसा बिहेवियर होना चाहिए उसके लिए जो ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन हमें दी गई है वो मैनेजरियल प्रिंसिपल से हमें मिलती है. सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि प्रिंसिपल्स क्यों हैं, क्या होते हैं प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों लाया गया, वाई वॉज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज इट वॉज द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन विच इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर. ठीक है. अच्छा, अब इसके 3-4 इंपॉर्टेंट बातें जो अगर हम याद रखेंगे तो हमें पता रहेगा कभी भी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं. अब वो गाइडलाइंस क्या हैं, दोज गाइडलाइंस आर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट as rigid as science principles, pure science principles. प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स काफ़ी रिजिड होते हैं, उनको मोल्ड नहीं किया जा सकता है. जिसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने कह दिया कि सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, उसमें कुछ यहाँ वहाँ नहीं हो सकता है कि सॉल्ट को हम पानी में डालेंगे, आज डाल के देखते हैं शायद आज वो नहीं मतलब सॉल्व नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा सॉल्ट पानी में, ऐसा नहीं होता है. सो इट हैज़ गॉट, प्योर साइंस हैज़ गॉट अ वेरी रिजिड प्रिंसिपल. लेकिन मैनेजमेंट इज़ नॉट प्योर साइंस, दिस वी हैव रेड बैक इन क्लास 11th एंड ऑल्सो इन द बिगिनिंग ऑफ क्लास 12th कि मैनेजमेंट इज़ नॉट प्योर साइंस. इसीलिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं. और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ह्यूमन बिहेवियर वेरी फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन. उस केस में क्या होता है कि हर सिचुएशन एक नई चीज़ डिमांड करती है. जब हम हर एक नए बंदे से के साथ डील करते हैं तो हमें वहाँ पे इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को थोड़ा सा मोल्ड करके थोड़ा सा क्रिएटिवली उसको यूज़ करना पड़ता है या अप्लाई करना पड़ता है. वो हम कैसे करते हैं, वो हम इसीलिए कर पाते हैं बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड. ठीक है. अब there are two different things. One is called technique of management and the other thing is called principle of management. Now these are two different things. When we read through principles of management, people generally tend to confuse it with techniques of management. लेकिन नहीं,
हमें ये बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। टेक्निक क्या होता है? किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है वो टेक्निक होता है। और प्रिंसिपल क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए जो जनरल गाइडलाइन दी जाती है वो प्रिंसिपल होता है। ये हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था। दैट्स वाई प्रिंसिपल एंड टेक्निक इज टू डिफरेंट थिंग। टेक्निक क्या होता है? Procedure or method which involve a series of steps to be taken to accomplish desired goals। ठीक है, इसको अगर हम, और प्रिंसिपल्स क्या होता है? गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस और एक्शंस व्हाइल प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स। इसको अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमें भूख लगी है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल क्या बोलता है? भूख लगी है तो जाके कुछ खाना खा लो। दैट्स अ जनरल गाइडलाइन कि अगर भूख लग रही है तो हमें कुछ खाना पड़ेगा। लेकिन टेक्निक क्या होगा? टेक्निक ये होगा कि कुछ बनाना है, उसका एक सर्टन प्रोसीजर होगा। समबडी लाइक मी, इफ आई हैव टू गो, if I am hungry, I go and cook Maggie for myself. Then the principle is I am hungry, so I go and cook. But the technique is I take out the Maggie packet from the almirah and follow the procedure of how to make Maggie, the 3 steps that is written on the back cover of the Maggie packet. I follow that to prepare Maggie. So that's the difference between principle and technique. And that is what is said in the first thing here, ki principle is one thing and technique is a different set of things which has got a series of steps for being properly done and accomplishment of the desired goal. गोल क्या था? भूख लग रही थी, खाना खाना था। प्रिंसिपल ने सिर्फ ये बता दिया कि कुछ जाके खा लो। टेक्निक ने हमें क्या बताया कि ऐसे ऐसे फलाना 3 स्टेप्स करिए, मैगी बन जाएगा, उसे डालिए बोल में और खा लीजिए। सो दीज वर द स्टेप्स दैट वी फॉलोड एंड दैट वाज द टेक्निक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना प्रिंसिपल्स वैल्यूज से भी अलग होते हैं। दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। वैल्यूज क्या होते हैं? वैल्यूज वो चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि जीवन में होनी चाहिए या जो एक्सेप्टेबल होता है। A common value that we all know is honesty. That's an acceptable thing, that is a desirable thing. लेकिन उसके साथ एक मॉरल भी जुड़ा होता है। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स में मॉरल नहीं होता है। प्रिंसिपल्स बेसिक ट्रूथ होते हैं या हमें गाइडलाइंस देते हैं फॉर बिहेवियर। दोज आर प्रिंसिपल्स। ना वैल्यूज़ की और एक बात कही गई है कि वैल्यूज़ आर जनरल रूल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी फॉर्म थ्रू अ कॉमन प्रैक्टिस। वैल्यूज़ क्या होती है? हर सोसाइटी के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होती है। इफ़ यू गो आउट ऑफ इंडिया देयर इज़ अ डिफरेंट कल्चर एंड दे हैव गॉट अ डिफरेंट वैल्यू सिस्टम। लाइक इन इंडिया the most common thing which is right now much in limelight is the Indian culture or the Indian values say that we need to fold our hands and say namaste to the people to greet. But if you go to the western countries, you find that the way of greeting there is shaking of hands. So we have got two different general rules of behavior. सेम ही काम कर रहे हैं, हम भी ग्रीट कर रहे हैं, वो भी ग्रीट करते हैं, लेकिन उनकी कॉमन प्रैक्टिस है हैंड्स शेक करना, हमारी कॉमन प्रैक्टिस है हैंड्स फोल्ड करके नमस्ते करना. सो दोज आर द डिफरेंसेस इन वैल्यूज बिकॉज वैल्यूज कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ अ डिफरेंट कल्चर और अ डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन. लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं दे डू नॉट चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन बिकॉज दे आर ट्रूथ्स और द गाइडलाइंस जिन्हें हमें फॉलो करना होता है. येस वी कैन tweak it here and there depending upon the scenario but the basics remain the same. ठीक है, so principles of management are formed after research and work situations which are टेक्निकल इन नेचर. सो ये बहुत रिसर्च करके जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के वो बहुत रिसर्च करके बनाए जाते हैं. ऐसे नहीं कि हमेशा से ये होता आ रहा है तो आज भी हम इसको कर लेंगे एंड लेट अस नेम दिस अ प्रिंसिपल. नो, देयर हैज़ बीन लॉट एंड लॉट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दैट अप एज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. फाइन. सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. सो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इट्स अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर. साइंस के जैसे इसके रिजिड प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं बिकॉज ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है.
ठीक है, ये टेक्निक से अलग होता है बिकॉज टेक्निक्स हैज गॉट सीरीज ऑफ स्टेप्स और प्रोसीजर्स। प्रिंसिपल्स सिर्फ गाइडलाइंस होते हैं। प्रिंसिपल्स वैल्यूज से भी अलग होते हैं बिकॉज वैल्यूज हैव गॉट मॉरल बिहेवियर और मॉरल कोनोटेशंस अटैच टू इट, लेकिन प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो काफ़ी रिसर्च के बाद कि प्रिंसिपल बनते हैं और वो काफ़ी टेक्निकल होते हैं नेचर में। सो दैट्स अबाउट इट। नाउ नेचर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर है। ये क्या नेचर है? सबसे पहला नेचर है कि इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। लेट मी जस्ट टेक आउट माय लेजर। या सो सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अभी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अभी जैसे हम पुराने एग्जाम्पल में बात कर रहे थे कि वैल्यूज़ जो होते हैं वो जगह, रीजन, रिलीजन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। कैसे एप्लीकेबल होते हैं? बिकॉज जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है या आईटी सेक्टर की कंपनी है या ये 100 एम्प्लॉयज़ की कंपनी है या 1000 एम्प्लॉयज़ की कंपनी है। इन सब चीज़ों से प्रिंसिपल्स को इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इट इज़ जस्ट ट्यून्ड अकॉर्डिंग टू द साइज और सेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। खाली एप्लीकेबिलिटी का जो एक्सटेंट होता है सिर्फ वो वेरी करता है, लेकिन प्रिंसिपल एज सच इन प्रिंसिपल इज बीइंग एक्सेप्टेड ऑल अक्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जनरल गाइडलाइंस। ऑफकोर्स हमने कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या देता है, हमें जनरल गाइडलाइंस देता है। क्या चीज़ के लिए गाइडलाइंस देता है? किसी भी काम को, किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वो हमें जनरल गाइडलाइन देता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर एक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में दो डिपार्टमेंट के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सपोज द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड द सेल्स डिपार्टमेंट, वेयर मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज टेलिंग वी वी शुड गेट bigger amount of budget in the annual budget। सेल्स डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, हम ज़्यादा काम करते हैं, हम सेल्स करते हैं, तो हमें ज़्यादा बजट मिलना चाहिए। इस तरीके से अगर दो डिपार्टमेंट लड़ रहा है तो जो सेंट्रल जो मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो क्या कर सकता है? वो ये देख सकता है कि इन दोनों के लिए हम अलग अलग रूप से प्रेफरेंशियल बेसिस पर हम इनको कुछ अलॉट ना करें। हम ये देखें कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैसे मीट हो रहे हैं, उस हिसाब से हम इनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। तो इसके लिए जो जनरल गाइडलाइंस हैं वो हमें प्रिंसिपल्स के रूप में मिल जाती हैं, जिनको हम यहाँ पे सीधा अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये हमको कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं देते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। व्हाट दे एक्चुअली प्रोवाइड इज जस्ट अ गाइडलाइन बेस्ड ऑन विच वी कैन कम टू आवर कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट इस पॉइंट के दो पार्ट्स हैं कि कोई भी प्रिंसिपल है या तो वो प्रैक्टिस के थ्रू बनाया गया है एक प्रिंसिपल, या फिर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे इतने सालों से कंपनीज चली आ रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चले आ रहे हैं। नाउ समथिंग दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड एज प्रैक्टिस, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एज अ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। जब हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पे एक प्रिंसिपल होता है डिसिप्लिन का प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल कैसे आया? वो प्रिंसिपल प्रैक्टिस से आया है। मतलब इतने सालों से कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को देखते हुए कि जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय है वो हमेशा ही बेटर आउटपुट देता है। ये दिस हैज़ बीन seen over the years, and thus by practice we have come to a conclusion that this is one of the important principle of management। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटेशन से हम कैसे प्रिंसिपल्स बना सकते हैं? अभी एक्सपेरिमेंटेशन कैसे प्रिंसिपल बन सकता है कि हमको ये देखना ज़रूरी है कि अगर एक फैक्ट्री है, वहाँ पे काम करके लोगों के अंदर फटीग लेवल थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। जब वो लगातार 3 घंटे तक काम कर लेते हैं, दे फील टायर्ड, दे फील स्ट्रेस्ड।
अब उनके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए वी डू नॉट हैव अ स्ट्रेट प्रिंसिपल, वी नीड टू डू एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ, जैसे प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं कि ये आप कर सकते हो टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल्स ऑफ योर वर्कर्स, लेकिन उन सब चीज़ों को करके देखना पड़ता है. सो व्हाट डू, वी ईदर डिवाइड द ग्रुप ऑफ वर्कर्स into 3 different or 2 different groups and then experiment on 2 different styles of stress busters and see how is it working. तो इस तरीके से हमारा जो प्रिंसिपल्स होता है वो या तो प्रैक्टिस से बनता है या तो एक्सपेरिमेंट से बनता है. अभी फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमने सबसे पहले ही देख लिया था कि प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं बिकॉज दे आर नॉट डीलिंग विथ समथिंग विच इज़ fixed, they are dealing with human behaviors which keeps on changing, इसलिए principles of management भी flexible होते हैं. अभी इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. अभी इसमें क्या होता है, सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो अपने हाथ में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है. अगर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे दिस सिचुएशन इज़ टू कीप द एंटायर थिंग इन माई हैंड, इट कीप्स इट मोर ऑफ सेंट्रलाइज्ड. अगर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे चीज़ों को उस कारण से डिफ़िकल्टी आ रही है, आई नीड टू एक्चुअली डिसेंट्रलाइज एंड अपॉइंट पीपल अंडर मी हु कैन टेक देयर ओन डिसीजंस, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है. दस कम्स इन फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, मेनली बिहेवियरल. इसमें दिस हैज़ गॉट नथिंग रॉकेट साइंस, दिस वेरी क्लियर कि जो मैनेजमेंट basic rule is it deals with the behavior of the people, therefore it is mainly behavioral. ठीक है, cause and effect relationships, now this is really important. generally क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में लेड आउट हैं, समझिए आपके लिए 14 प्रिंसिपल्स. अब वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो स्पेसिफिक सिचुएशंस के हिसाब से हमारे सामने रख दिए गए हैं. अब रियल लाइफ में एक्चुअली क्या होता है, रियल लाइफ में ये होता है कि नो टू सिचुएशंस आर कंप्लीटली एग्जैक्टली सेम. उस केस में क्या होता है, हमें प्रिंसिपल में से जो इम्पॉर्टेंट क्रक्स होता है वो निकाल के लाना पड़ता है और अप्लाई करवाना पड़ता है अपने गिवन सिचुएशन के अंदर में. देयरफॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट. अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे. Thus, cause and effect relationship comes into picture. ठीक है, next contingent. Now contingent का मतलब क्या होता है, it depends upon the prevailing situation. मतलब जैसे एक हिंदी में एक कहावत है, इफ़ यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट, जैसा देश वैसा भेस. सो जैसी सिचुएशन होती है वैसे ही प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ता है. जैसे एक बहुत कॉमन प्रिंसिपल है, जब हम आगे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो हमारे पास ये सारे प्रिंसिपल्स आएंगे. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन रिलेट टू द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. एक प्रिंसिपल है फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन फॉर ईच वर्कर. उसका मतलब होता है कि सबको एक जैसा और जो जितना डिज़र्व करता है उतना उसको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए. अभी हमने ये तो बोल दिया कि फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन होना चाहिए. फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन फॉर अ वर्कर working in Reliance Industries will not be same for a worker working in a small size cottage industry which has got 50 workers. वहाँ पे जो कंपनी की देने की कैपेसिटी है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम अ कंपनी विच इज़ ऑपरेटिंग एट अ लेवल ऑफ 50 वर्कर्स. तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि वहाँ पे वर्कर को अगर 10,000 रुपये मिल रहे हैं एक महीने के तो यहाँ भी 10,000 मिलना ज़रूरी है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड वेरीज अकॉर्डिंगली. राइट, यहाँ भी जस्ट एंड फेयर देना ज़रूरी है बट यू कैन नॉट कंपेयर विथ इट. सो यू नीड एन एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन एंड दस it is contingent or dependent upon the situation. Thus are the nature of principles of management.
तो ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर में से है. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ देम. इफ एट ऑल यू गेट स्टक एट एनी ऑफ देम, you can always come back to us with your queries in the comment section. अभी नेचर के बाद हम क्या देखेंगे? सिग्निफिकेंस. ऑब्वियसली ये तो हम क्लास 11th की बीएसटी को पढ़ने से ही हमें पता चल गया था कि बीएसटी के अंदर में हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट या नेचर या डेफिनेशन, दैट्स पॉइंट 1. देन कम्स नेचर, देन कम्स सिग्निफिकेंस. ये 3 तो होंगे ही होंगे. So let's start with the significance. Now the significance, providing, obviously significance is what? Importance of the principles of management. Providing managers with useful insights into reality. अभी ये जो principles हैं ये कब से चले आ रहे हैं? From the years they were declared as principles, they have been followed by the managers of the industry. अभी इससे क्या होता है? ये प्रिंसिपल से हमें पुरानी गलतियों से सीखने को मिल जाता है. हमें वही गलतियां करके सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मैं इफ़ आई एम अ मैनेजर ऑफ अ गिवन ऑर्गेनाइजेशन एंड आई फॉलो दीज प्रिंसिपल्स, मुझे मालूम है कि जैसे वन बेसिक प्रिंसिपल वी ऑल नो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इज़ डिसिप्लिन. मुझे मालूम पड़ गया कि डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है तो ही आउटपुट प्रॉपर आएगा. अभी इसके लिए मुझे इनडिसिप्लिन होके पहले गलती करके देखने की ज़रूरत नहीं है. आई नो इट ऑल एट वंस. इससे मेरा समय भी बचता है. आई गेट टू नो कि पुराने ये मिस्टेक्स थे, मुझे वो मिस्टेक्स करके सीखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. और इससे हमें एक और चीज़ मालूम पड़ती है कि जो रूटीन डिसीजंस होते हैं, जो कि एकदम क्लियर चीज़ें होती हैं, वो टॉप मैनेजमेंट अपने सबॉर्डिनेट्स को भी दे सकता है कि ये डिसीजंस तुम खुद ले लो, बिकॉज दिस हैज़ गॉट नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व. दीज आर द टेक्निकल थिंग्स विच यू डील ऑन अ डेली बेसिस. यू डोंट नीड माई इंटरवेंशन हियर, सो यू कैन टेक केयर ऑफ दिस एंड द मैनेजमेंट कैन फोकस ऑन वॉट इज़ more of a priority to them. ठीक है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें क्या होता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही मैनेजमेंट की सबसे बड़ी ज़रूरत है. अभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी हमें यही कैसे करने को बोलता है, बिकॉज इट ऑलवेज टेल्स अस कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, मतलब मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकल करके आएगा. दिस टेल्स अस एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. देन कम्स साइंटिफिक डिसीजन. नाउ साइंटिफिक डिसीजन का क्या मतलब होता है? हमने कहा कि दिस इज़ नॉट प्योर साइंस. देन व्हाई आर वी टेलिंग दैट इट हेल्प्स अस इन मेकिंग साइंटिफिक डिसीजंस? बिकॉज इट नॉट बीइंग प्योर साइंस, it at the same time helps us in taking such decisions which are having the element of the pure science things. जैसे कि किसी भी डिसीजन के लिए टाइमली होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो कोई भी एक डिसीजन जो हम एज मैनेजमेंट लेते हैं वो टाइम से नहीं लिया हमने, तो वो डिसीजन लेना हमारे लिए वेस्ट है. सो टाइमली, रियलिस्टिक एंड फ्री फ्रॉम बायस, ऐसे डिसीजंस लेने के लिए हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है. दस इट हेल्प्स इन टेकिंग साइंटिफिक डिसीजंस. नाउ मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स. नाउ ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें इस चीज़ में कैसे हेल्प करता है? इस चीज़ में हमें ऐसे हेल्प करता है कि हमें वो ये बताता है कि समय के हिसाब से अगर हमें देखना है तो आजकल जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या कर रही है, उसे पता है कि उसका कोर बिजनेस क्या है. इट इज़ नॉट ट्राइंग टू एक्सपैंड इट सेल्फ इन टू इट्स नॉन कोर बिजनेस. इट टेक्स केयर ऑफ द कोर बिजनेस. जैसे आजकल कई बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो, जैसे कि कोई आईटी कंपनी है या सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका मेन काम है सॉफ्टवेयर डेवलप करना या सर्विस करना. वैसी कंपनीज क्या करती हैं, अपने फाइनेंस, अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को या पेरोल डिपार्टमेंट को आउटसोर्स कर देती है, बिकॉज दैट
इज समथिंग जिसमें उनको ज़्यादा दिमाग लगा करके अपना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज़ नॉट देयर कोर बिजनेस. देयर कोर बिजनेस इज to develop and maintain software for their clients. So what they do is their non-core activities of HR and finance, they outsource it. तो changing environment के हिसाब से they know what is to be done, what is not to be done. ठीक है, आगे fulfilling social responsibility. Now principles of management also takes care कि every organization or every company is doing their own bit depending upon their own size and availability of resources. They are fulfilling their social responsibility. इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. वन कॉमन एग्जाम्पल दैट आई हैड कम अक्रॉस वेरी रिसेंटली वाज देयर दिस वन बैंक कॉल्ड डीबीएस बैंक. उसने अपने कॉर्पोरेट सोशल विंग में क्या कर रखा है, इट यूजेस द वेस्ट फ्लावर्स, दोज आर बीइंग पुट इन द रिवर्स, जो हम फूल बहा देते हैं आफ्टर एनी ऑफ द पर्पसेस दैट वी हैव, पूजा करने के बाद, मंदिर में चढ़ाने के बाद, दरगाह में चढ़ाने के बाद, चादर पे चढ़ाने के बाद, we that those flowers are actually thrown away in water, in rivers. So what this wing of DBS Bank does is collects those flowers and makes agarbatti, the incense sticks which we use for our pujas and the fragrance that it gives, उसके लिए वो अगरबत्ती बनाने के काम में इट इज़ देयर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग ऑफ द पर्टिकुलर बैंक. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी कंपनीज करती हैं फॉर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नाउ principles of management also helps them in doing this. Now management training, education and research, this is one of the importances of management training, because management principles, because it helps us in taking decisions around the training, education and research of the management, such as the significance of management. So here we are done with the first bit of principles of management, where we have read about what is the concept of principles of management, its nature and its importance. Next to follow, we'll start with Taylor and Fayol ke principles and close it. So that's all for now. So it's me, Jyoti Rathi Bagdi, signing off. See you in the next presentation. Thank you.